آپ YouTube چینل اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کے سوالات دیکھ لیں، لوگ سب سے زیادہ جو آج کل سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں کون سی ہیں، قیامت کب آئے گی۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے یسألک یوم الساعہ کے ساتھ لفظ آیا کہ یہود و نصارہ سب سے زیادہ جو سوال کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہی سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا نشانی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں آپ نے چھوٹا سا ایک بات نوٹ کر لینی ہے، جس بندے کی موت قریب آ گئی اور موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آج مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا کس نے کب مرنا ہے، ہر بندے کی قیامت اس کے مرتے ہی شروع ہو جانی ہے۔ جیسے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو طبعی موت آ گئی، بیماری سے موت آ گئی، بڑھاپے میں موت آ گئی، جوانی میں آ گئی، بچپن میں آ گئی، اور جو ہے نا جس حال میں بھی اس کی موت آ گئی، اچانک آ گئی، جیسے ہی وہ انسان مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو آپ یوں سمجھ رہے کہ قیامت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو باقی سوالات ہے نا، یہ اس کا ہماری زندگی سے نا کوئی زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے کہ دجال کا فتنہ اور جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا اور لشکروں کا نکلنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وہ ایک دور پتہ نہیں کب آنا ہے، آج آنا ہے، کل آنا ہے، 100 سال بعد آنا ہے، 1000 سال بعد آنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جتنے لوگوں نے بھی پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشارے تو بتائے لیکن پکی بات نہیں بتائی۔ اس کا صحیح جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ اس کا صحیح علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قیامت کے نشانیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے، موت کی تیاری کی ہے۔ کیا آپ قبر میں جا کر قبر کے سارے جتنے سانپ بچھو اور حشرات الارض اور اندھیرا اور سوال و جواب اور جزا سزا، آپ ان کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے پاس تیاری ہے؟ پھر آپ حشر کے بعد جو ہے نا آپ کے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا آپ کے پاس ایسے اعمال ہیں کہ آپ اللہ کو وہ دکھا سکیں اور آپ کی بخشش ہو جائے؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو قیامت تو انسان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھنے پڑے گی۔ سب سے پہلے تو قیامت انسان کو یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا کماتے کماتے اتنا پیسہ کماتا ہے کہ پھر وہ بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ حرام حلال سب کچھ مکس اور کھلا نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پہلی قیامت تو اللہ اس کو مرنے سے پہلے دکھاتے ہیں۔ وہ کون سی قیامت ہوتی ہے کہ اس کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی باغی ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ رشتہ داروں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اور وہ بے بس ہو جاتا ہے، حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، اور صحت جواب دے جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اس کا ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگیں چلنے سے معذور ہو جاتی ہیں، اور کمر کا کب نکل آتا ہے، اور وہ بے بس سا ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا، سب اس کو ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں، ایک چارپائی پہ ڈال دیتے ہیں، وہ بے بس لاچار مجبور معذور محتاج بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پہلی قیامت تو اس کے اوپر یہ آتی ہے۔ تو یہ کون سی چھوٹی قیامت ہے کہ انسان اتنا عروج میں رہا ہو، اتنا جوانی میں کھیلا ہو، اتنا اس نے طاقتیں دیکھی ہو، اتنا اس نے حسن دیکھا ہو، اتنا اس نے پہننا اوڑھنا کیا ہو، اور اتنا دنیا میں پھرا ہوا ہو، اور وہ اس حد تک جو ہے نا ایک اس کے چہرہ جھریوں سے بھر جائے، حسن ختم ہو جائے، اور آنکھیں کی بینائی ختم ہو جائے، کانوں کی سماعت ختم ہو جائے، زبان سے بول نہ سکے، اور جو ہے نا وہ پاؤں سے چل نہ سکے، ہاتھ سے پکڑ نہ سکے، تو وہ اشارے بھی نہ کر سکے، اور کوئی اس کو جو ہے نا پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ جس اولاد کے لیے، جس گھر والوں کے رشتہ داروں کے لیے اس نے دنیا کا ہر برا کام کیا اور ہر حرام کمائی، وہ سارے بچے اس کو چھوڑ کر کوئی کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی شہر چلا گیا، کوئی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو گیا، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی مالدار ہو تو ایک آدھا ملازم اس کو رکھ کے دے دیا، ورنہ گھر کے غریب آبادی میں تو اس طرح کے بزرگوں کی، بوڑھے بابوں کی گھر کے باہر چارپائی پڑی ہوتی ہے، مکھیوں کی بھن اوپر ہوتی ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، کچھ لوگ اولڈ ایج میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قیامت ہے۔ دوسری قیامت آتی ہے کہ جب اس کی موت جو ہے نا، وہ مرنا چاہتا ہے لیکن موت نہیں آتی، اور وہ بیماری در بیماری، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، اور اس کے گردے فیل ہو گئے، دل ختم ہو گیا اس کے جو ہے نا، لیکن موت پھر بھی نہیں آ رہی، اور وہ سارا جسم جو ہے نا ادھر بھی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی ہسپتال میں، ادھر ICU میں، ادھر انجیکشن لگ رہے ہیں، ادھر ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، ادھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پمپنگ کی جا رہی ہے، اور جو ہے نا وہ بے بس ہے، اور وہ گھر والے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، ہسپتال والے ہسپتال میں نہیں رکھنا چاہتے، پیشاب اس کا بند ہو گیا، درد سے وہ چیخ رہا ہے۔ تو اس کی یہ ساری حالتیں کون سی قیامت سے کم ہے؟ یہ بھی تو قیامت ہے۔ یہ دوسری قیامت ہے کہ اس کو موت نہیں آ رہی۔
रही। नज़ा की हालत ऐसी है कि वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता, जीना चाहता है जी नहीं सकता, बैठना चाहता है बैठ नहीं सकता। तो ये भी एक क़यामत है। हम एक ही सवाल किए जाएंगे क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तो ये दूसरी क़यामत है। तीसरी क़यामत ये है कि जैसे वो मरेगा तो फिर उसकी कब्र की सारी मंजिलें शुरू हो जाएंगी और लोग उसको फेंक कर आ जाएंगे और कंधों से उतारते बोझ एक लम्हा उनका दिल होता है घर वालों का कि फटाफट ये मैयत, उसका नाम खत्म हो जाएगा, उसके नाम की जगह पर उसके नाम उसको एक नया नाम मिल जाएगा। उसको मैयत कहते हैं, उसको मुर्दा कहते हैं, उसको वो लाश कहते हैं, तो उसका नाम ही तब्दील हो जाएगा। ये भी एक क़यामत है। फिर वो कब्र में जो है ना वो उसको फटाफट लेकर जाकर पता नहीं कोई उसको नहलाने वाला होगा कि नहीं होगा, उसको कोई वारिस वाले दफनाने भी जाएंगे कि नहीं दफनाने जाएंगे, उसके लिए उसको कब्र भी नसीब होगी कि नहीं होगी, उसको कफन नसीब होगा कि नहीं होगा, ये भी क़यामत है। फिर उसको कब्र में फेंक कर जो है ना लोग जो है ना फटाफट ऐसे अभी मिट्टी कब्र की मिट्टी गीली होगी और जैसे मिट्टी कब्र की पूरी हुई लोग सारे हाथ झाड़ कर वापस आ जाएंगे। ये भी क़यामत है कि सारे छोड़कर अकेला जंगल में तारीकियों में और बंद डब्बे में छोड़कर जो है ना वो सारे छोड़कर चले जाएंगे। ये भी क़यामत है। फिर उसके बाद जो है ना कब्र की मंजिल आएगी कि कब्र में मुनकर नकीर के सवालात आ जाएंगे, जहन्नुम के फरिश्ते आ जाएंगे, जन्नत के फरिश्ते आ जाएंगे, हशरातुल अर्ज़ आ जाएंगे, अमाल नामे उसके सामने पेश किए जाएंगे और उसके मुताबिक उसकी जज़ा सज़ा का अमल शुरू हो जाएगा। किसी को पता नहीं होगा। अगर तो अच्छा होगा तो फिर उसकी यानी जन्नत ही जन्नत है, बुरा होगा तो फिर उसकी क़यामत कि जनाब इधर से कब्र उसको दोनों तरफ से उसकी हड्डियों पसलियों को भींचेगी हत्ता कि इंसान ऐसे बिल्कुल आपस में प्रेस हो जाएगा और जो है ना कब्र इतनी उसकी तंग कर दी जाएगी और अंदर से सांप बिच्छू का जो कुरान ने और हदीस में ने जितने वादे किए वो सारे अल्लाह के हक और सच है और कब्र ये सारी जो है ना इन चीजों को बताएगी कि अल्लाह के वादे कितने हक और सच है। तो कब्र भी इन सारी मंजिलों से गुजरेगा। उसके जिस्म को जो है ना वो जमीन के कीड़े खा जाएंगे, हड्डियां रह जाएंगी वो भी खा जाएंगे। एक रीढ़ की हड्डी निशानी के तौर पर अल्लाह रखेंगे जिससे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन उनको सबको जिंदा करना है। बाकी सारा का सारा उसकी आंखें निकल जाएंगी, दांत निकल जाएंगे, कान खत्म, खोपड़ी की खोपड़ी को वो भी खत्म, एक वक्त आएगा वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये भी क़यामत है। फिर उसके ऊपर जो उसकी जो रूह को आलम में बरज़ख में जो भेजा जाएगा वहाँ जज़ा सज़ा का जो अमल है तो उसको जो है ना कब्र के अजाब की जो तकलीफें होंगी और ये सारी तकलीफों ये इसको वो क़यामत नहीं समझता। फिर उसके बाद जो है ना जब रोज़े महशर होगा, रोज़े महशर में वो किन लोगों के साथ खड़ा होगा, काफिरों के साथ खड़ा होगा, मुनकरों के मुनाफिकों के साथ खड़ा होगा, अल्लाह के नाफरमानों में खड़ा होगा। तो सिर्फ खड़ा होने की क़यामत है। फिर वो सोचेगा काश मुझे मौत आ जाए, काश मैं मर जाऊं, काश मेरे से ये हो जाए। अपनी उंगली को जो है ना वो काटना शुरू करेगा, पूरा बाजू खा देगा। अफसोस का इतना आलम होगा, दिल बैठा हुआ होगा, मुट्ठी में होगा और उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं और मैं किधर जाऊं और मेरी मंजिल क्या है, मेरी कोई राय फरार नहीं है। तो मैं जो है ना गर्मी हशर की ऊपर से गर्मी और लंबी लाइनें और अमाल नामे सारे के सारे जो है ना वो स्याह के स्याह और जिस्म सारा गंदगी से लिबड़ा हुआ बुरे जो क्योंकि उस वक्त जो है ना इंसान के जितने गुनाह होंगे अगर वो तौबा के बगैर मर गया तो सारे गुनाह उसके गंदगी के ढेर बनाकर उसके जिस्म के ऊपर जो है ना वो दूर से पहचाना जाएगा कि ये जो है ना जन्नती है कि जहन्नमी है। चेहरे जो है ना स्याह पड़ जाएंगे, काले धुआं जैसे एक बदनुमा चेहरा होता है वो चेहरे ऐसे हो जाएंगे। तो ये भी क़यामत है। अर्श की गर्मी जो होगी वो ऐसी गर्मी के ऐसी गर्मी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी जहन्नुम नहीं शुरू हुई, अभी अर्श की गर्मी है। तो जो नेक लोग होंगे उनको अर्श का साया नसीब होगा। तो ये जो अर्श के साये से महरूम हो जाएंगे ये भी एक क़यामत है। फिर उसके बाद जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा तो इंसान की जो घबराहट का आलम होगा, तकलीफ का और एक परेशानी और गम का, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, बीवी खामिद को नहीं पहचानेगी। तो ये भी क़यामत है। तो आप देखें ना, आप एक कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हो जाए तो हम बच्चे क्या कहते हैं जी हमने तो क़यामत देखी है, हमने तो क़यामत का मंजर देखा है कि हमारा बाप हमारी आंखों के सामने एक्सीडेंट में मर गया, ये फलां कत्ल हो गया, फलां ये हो गया। तो इंसान जिंदगी में कोई ऐसे हादसे उनके साथ पेश आ जाते हैं तो वो लोग बैठकर आपस में कहते हैं कि हमारे ऊपर तो क़यामत गुजरी है। तो ये भी क़यामत है। फिर उसके बाद एक क़यामत का मंजर ऐसा भी होगा कि जब अमाल नामे जो ना वो उसके जज़ा सज़ा का और उसके अमाल नामे खोले जाएंगे तो उस वक्त जो गम ज़्यादा और परेशान होगा सबको भूल जाएगा। तो इस क़यामत से गुजर के बाद अगली क़यामत आएगी जब उसको अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा तो खुश नसीब होगा, बाएं हाथ में मिला तो ये इतनी बड़ी क़यामत आएगी कि वो कहेगा बाकी पिछले सारे गम भूल जाएगा। ये गम उसके लिए सबसे बड़ा गम होगा कि मेरा अमाल नामा मुझे बाएं हाथ में मिला है, मैं कितना बदनसीब हूँ, अब जहन्नुम मेरा मुकद्दर है। तो ये उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी। उसके चेहरे के ऊपर जो है निशान लगा दिए जाएंगे कि ये जहन्नमी है। तो ये थोड़ी क़यामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सिफारिश से महरूम हो जाना और अमालनामा बाएं हाथ में मिल जाना, और फिर उसके बाद उसको पुल सरात के अंदर से ले जाया जाएगा तो उसकी जिस्म कटना शुरू होगा। ये थोड़ी क़यामत है। फिर हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो ये इससे बड़ी कौन सी क़यामत होगी? तो आप ये सवाल करना छोड़ दिया करें कि क़यामत कब आएगी। मेहदी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आना है, जब आना है उनका वक्त होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना है अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप इस जुस्तजू में, इस साइंस इन्वेस्टिगेशन में पढ़ने के बजाय अमल की तरफ तवज्जो दें, अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दें, अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो दें। और इतनी क़यामतें आपके इंतजार कर रही हैं, कौन कौन सी क़यामतों से आपने गुजरना है उनकी तैयारी करें। और फिर आप जो है ना, जब आपकी ये सोच पैदा हो जाएगी तो फिर आपको इस तरह के सवाल भूल जाएंगे, आपको फिक्र पड़ जाएगी, आप हंसना भूल जाएंगे, आपको जो है 24 घंटे आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आपके गम की हालत ऐसी होगी। यहाँ एक छोटा सा मुकदमा FIR हो जाए और कोई कत्ल का, कोई और डकैती का, और हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। एक हमारे दोस्त है, उनका बेटे को 2 दिन के लिए FIA ने उठाया, 2 रातें 2 दिन, और 2 रातें वो ऐसे रोए, ऐसा उनके घर मातम परेशानी। 2 करोड़ रुपया देकर उन्होंने जो है ना उस बच्चे को जो है ना कैसे निकलवाया। तो कहते हैं हमारे ऊपर तो क़यामत आ गई थी, हमारा बच्चा जेल में चला गया था, हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। तो ये सारी क़यामतें आपको भूल जानी है। जब आपने असल क़यामत को देखना है, जब आपने अपने अंजाम को देखना है, बेहतरीन समझदार इंसान वो है जो उन क़यामतों से पहले अपने अल्लाह के साथ सुलह कर ले, तौबा कर ले, जिंदगी का रुख बदल ले। और ये हंसी खेल तमाशा, ये फनी वीडियो, ये नाच गाना, ये तमाशबीनी, ये मुजरे, नंगी औरतें, ये शराब, ये कबाब, ये हराम की कमाइयाँ, ये सूद की कमाइयाँ, इनसे तौबा कर ले और अपनी जिंदगी का रुख कर ले। तो फिर उसके लिए जो है ना ये इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे। जिसको असल क़यामत का पता लग जाएगा ना, उसकी हंसी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, उसके रोने कभी खत्म नहीं होंगे। और इसका सबूत कुरान पाक के अंदर सूरत मरियम के अंदर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो बचपन में अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, उनका नाम भी अल्लाह ने खुद रखा कि उसका नाम याह्या होगा। और वो बचपन में इस कदर, जब उनके वालिद जो है ना जहन्नुम की बातों का जिक्र करते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, और लोगों को जहन्नुम के बारे में तफसील बताते थे, तो ये छोटी उम्र में थे, 7-8 साल के, 10 साल के। तो ये जब जहन्नुम की बातें सुनते थे तो ये इतना रोते थे, इतना रोते थे। इनके अंदर ऐसा जहन्नुम का, आखिरत का, हशर का, मौत का, कब्र का, जज़ा सजा का ऐसा खौफ बैठा कि इनको जो है ना हंसना भूल गया। उम्र कितनी है? 7-8 साल, 10 साल। इतना रोते थे। एक वाक़या इनका लिखा है कि एक दिन ये रोते रोते कहीं पहाड़ों में चले गए, तो दोनों मियाँ बीवी, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर बेटा लिया था, तो दोनों उनको ढूंढते ढूंढते जब वो पहाड़ों की तरफ गया तो एक चरवाहा उनको मिला जो बकरियां चरा रहा था। उस चरवाहे से पूछा कि आपने इस उम्र का, इस शक्ल का बच्चा देखा है? कि वो जो है ना वो रोता बहुत है, तो उसके रोने की आवाज शायद आपने सुनी हो या उसकी शक्ल देखी हो। तो उस बकरियां चराने वाले ने कहा कि इस पहाड़ के इस तरफ ना एक रोने की आवाज आती है, और मैं उस तरह एक दफा बकरियां चराने ले गया तो वो रोने की आवाज इतनी दर्द वाली थी, इस कदर वो बच्चा इंसान रो रहा था कि उसके रोने की आवाज सुनकर मेरी जितनी बकरियां हैं ना, इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। जिन लोगों को क़यामत का पता होता है ना, क़यामत क्या चीज है, तो उनका रोना फिर इस तरह का हो जाता है। ये हंसियां भूल जाते हैं, ये जिंदगी भूल जाते हैं, ये फैशन भूल जाते हैं, ये स्टाइल भूल जाते हैं, ये मॉडर्न लाइफ भूल जाते हैं, ये अप टू डेट होना वो भूल जाते हैं। तो ये क़यामत हर बंदे के सर के ऊपर खड़ी हुई है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।